बीती रात वो हुआ जो अभी से पहले शायद ही कभी हुआ होगा। बड़ी खबर यह है कि मीडिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच तीखी बहस हो गई। बहस का ऐसा नजारा अब तक दुनिया की कूटनीति में कभी भी देखने को और सुनने को नहीं मिला। दरअसल ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ समझौते के लिए कहा और इसके बाद ज़ेलेंस्की ने रूस को गुनहगार बताया और कहा कि रूस पर किसी ने लगाम नहीं लगाया। इसके बाद बात वहां से बढ़ गई। ट्रंप ने कह दिया कि ज़ेलेंस्की के मन में पुतिन के खिलाफ नफरत भरी हुई है और इसलिए समझौता करना बहुत मुश्किल है। तो दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच किस तरीके से ओवल ऑफिस में कल गर्मा गर्म बहस हुई, उसके बाद अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बहस तब शुरू हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विवाद को कूटनीतिक तरीके से हल करने के लिए कहा, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने रूस पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि रूस कूटनीति की बात नहीं मानता, जिसके बाद बात बढ़ी और बहस में तब्दील हो गई। ट्रंप से बहस के दौरान बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और साथ ही 2014 से रूस कब्जा और हत्या करता रहा है। ज़ेलेंस्की की ओर से ये बात कही गई। What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but that's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. ओवल हाउस में मीडिया के सामने हुई इस बहस में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर सीधा आरोप लगा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति लाखों जिंदगियों से खेल रहे हैं, जिनका देश खतरे में है, लेकिन वो समझ नहीं रहे और वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ खेल रहे हैं ज़ेलेंस्की। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की अमेरिका का अपमान भी कर रहे हैं अमेरिकी मीडिया के सामने। A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? And the president who's trying to save your country. डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में बहस यही नहीं रुकी। ट्रंप ने जेलेंस्की को बताया कि यूक्रेन बड़े संकट में है और इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की को अमेरिकी मदद की याद भी दिलाई। लेकिन जेलेंस्की ने दावा किया कि उनका देश युद्ध की शुरुआत से ही रूस से अकेले मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन युद्ध नहीं जीतने जा रहा, ट्रंप की ओर से बात यह कही गई और उन्होंने कहा कि आज से यूक्रेन के बुरे दिन शुरू होते हैं। अमेरिकी मदद जो मिली उसकी भी याद दिलाई ट्रंप ने जेलेंस्की को और अपने देश में मजबूती से हैं, ये जेलेंस्की ने बात कही है। Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn We- good chance of we are coming out staying- okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if, West if Virginia? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप का फिर से बयान सामने आया और उन्होंने दावा किया कि जेलेंस्की फौरन वापस आना चाहते हैं बातचीत के लिए, लेकिन मैं उन्हें अभी वापस नहीं आने दे सकता हूं। ये ट्रंप की ओर से बात कही गई। उन्होंने कहा क्योंकि जेलेंस्की ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखते जो शांति स्थापित करना चाहते हो। ये फौरन बयान भी सामने आ गया डोनाल्ड ट्रंप का और उन्होंने ये कहा है कि जेलेंस्की वापस आना चाहते हैं बातचीत के लिए, लेकिन मैं उन्हें अभी वापस नहीं आने दे सकता हूं क्योंकि जेलेंस्की ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते जो शांति स्थापित करना चाहते हैं। Well, he says he wants it now. He wants to come back right now, but I can't do that. He's looking to go on and fight. I'm just telling you. You saw what I saw today. That was not a man that wanted to make peace. और वही देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया और उन्होंने यात्रा के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन को न्याय संगत और स्थायी शांति की जरूरत है। ये बात उनकी ओर से कही गई है और वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। जेलेंस्की का भी बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप से जो उनकी तीखी बहस हुई उसके बाद अमेरिका दौरे के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा और साथ ही उनकी ओर से यूक्रेन को न्याय संगत और स्थायी शांति की जरूरत है, ये बात भी कही गई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, जो बहस हुई उसके बाद उनका बयान सामने आया और जेलेंस्की की ओर से भी ये बात कही गई है। अमेरिका दौरे के लिए धन्यवाद, अमेरिका के लोगों का धन्यवाद उन्होंने किया, खुद डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है लगातार। लेकिन बहस के बाद जेलेंस्की का ये बयान है, उन्होंने अमेरिका का धन्यवाद कहा। इस यात्रा के लिए धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति का, कांग्रेस और अमेरिकी जनता का भी धन्यवाद। यूक्रेन को न्याय संगत और स्थायी शांति की जरूरत है और हम उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो बहस हुई दोनों के बीच में ओवल ऑफिस में, उसके बाद ये बयान सामने आया है जेलेंस्की का और उन्होंने धन्यवाद कहा है अपनी यात्रा को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस पर दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है।
जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा ने यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कही है, जबकि रूस ने तीखी टिप्पणी की और ट्रंप ने जिस तरह से खुद पर काबू रखा वो खुद पर संयम रखने की पराकाष्ठा है। ये रूस की ओर से बात कही गई है। हालांकि पोलैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड ने समर्थन किया है यूक्रेन का और रूस की ओर से तीखी टिप्पणी की गई है और उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ने जिस तरह से खुद पर काबू रखा इस पूरी बातचीत या फिर कह लीजिए बहस के दौरान वो संयम रखने की पराकाष्ठा है। ये रूस की ओर से बात कही गई है। देखिए, रूस को लेकर मीडिया के सामने दोनों ही भिड़े। ज़ेलेंस्की ने रूस को हत्यारा करार दिया और ये कहा ट्रंप को कि आप रूस की भाषा बोल रहे हैं, पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। ये ट्रंप की ओर से बात कही गई कि आप तीसरे वर्ल्ड वॉर का जुआ खेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका रूस से कोई समझौता नहीं करे और अमेरिका को क्या करना है ये आप तय नहीं करेंगे। ट्रंप की ओर से बात कही गई ज़ेलेंस्की को और उसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध रोकने में मदद नहीं की। जो अमेरिका की ओर से मदद की गई उसकी याद दिलाते हुए ट्रंप, उस पर जवाब है ज़ेलेंस्की का और आप अमेरिका का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद ट्रंप की ओर से बात कही गई। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में ओवल ऑफिस में जिस तरीके से बहस हुई उसी का ये अंश आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से पहले बातचीत और धीरे धीरे मामला गरमाया, गर्मा गर्म बहस वहां पर हो गई। रूस के मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हुई और उसके बाद इस तरीके से कभी ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की को फटकारते हुए दिखाई दिए तो कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर।